It's a verb. It's an important chapter, so pay attention, okay? Verb মানে কি এনে আমি কি বুঝো স্কুলতো পাইছিলো verb মানে কি হয় No. মানে I am talking, you are sitting, after the class you will go somewhere else, so an action is taking place, right? I am doing something or you guys are doing something, that action is called verb, okay? The definition here is a word that is usually one of the main parts of a sentence and that expresses an action, an occurrence or a state of being is called a verb. Examples include jump, think, happen, exist and many more. Understood? Any confusion there? Read it and ask me if any doubts. I'm also thinking. So any doubts here? So in that picture you can see the girl is carrying the flower tub, the boy is serving, the other boy is running, he is washing his hands, then sleeping, cooking, eating, working, sweeping. Everyone is doing something or the other. These works are only called verbs. Yes. Verbs can be expressed in different tenses. Tenses mane ki we are in the present tense. Kali hole ki hoy past tense. Jitu aha kali ahi ase wo kya hai future tense. Understood? So they are saying that these all verbs can be expressed in certain different tenses. For example, I am teaching you all, this is the present tense. I was teaching you all is in past tense and I will be teaching you all tomorrow is the future tense. So it can be expressed in different tenses depending on when the action is being performed. Example, you were a great singer. In this sentence the verb is were. It shows a state of being that was in the past. So it is a past tense. After lunch I will call my mother. In this sentence will call is the verb phrase. Phrase is normally, verb is usually a word. When you use the word phrase mane duta ba tinta word besi, when we combine 2 to 3 words together and it makes a meaningful sentence or a short word, it becomes a phrase. So here will call is more than one word, so it's a phrase, okay? So it's a verb phrase. It shows that something will happen in the future, so it is a future tense verb. Go through the slide, even the examples, and ask me if any doubt. Always when you read the definition, remember these examples. So when you know verb, you will remember these examples. अगर हिंदी में भी कोई पूछे तो वही है जो हम काम करते हैं यूजुअली उसी को वर्ब बोलते हैं. Understood? Any doubts? Okay. Similarly, like the earlier part, verb is a sentence that tells us what the subject performs. Subject object सिखाया था, right? उसमें से if I am saying Ram is sleeping, which is the verb here? Sleeping, क्योंकि वो सो रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, right? And Ram is the subject over here. So verb का काम क्या है? जो subject जो भी काम कर रहा है वो बताता है, okay? Verbs are the hearts of English sentences. Without verb, no English sentence is complete, okay? Examples. Jacob walks in the morning, which is an usual action, मतलब daily का है.
Then is Mike is going to school, a condition of action. He has to go to school, right? He is going to somewhere, a definite place. Albert does not like to work. This is a negative action. Anna is a good girl, a state of being. Understood? Verbs are related to a lot of other factors like the subject, person, number, tense, mood, voice, etc. मतलब last slide में हमने क्या पढ़ा था that verbs are related to tense. बट वर्ब्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सन जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में, नंबर कितने लोग हैं या कितने चीज़ें हैं या कहाँ पे जा रहे हैं, टेंस तो बोला ही है, मूड हाउ इज़ द पर्सन, व्हाट इज़ हिज मूड, एंड वॉइस हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी सीखा था. आई विल टीच यू ऑल दैट लेटर, बट वर्ब इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग. इन शॉर्ट, in a sentence verb is a very essential thing. No English sentence is incomplete without a verb. Okay, again examples है ये क्या था. Have a look at it and ask me if any doubts. Done? Okay. Now verbs are divided into two main parts. ठीक है, first is finite verb, another one is non-finite verb. स्कूल की तरह इतना आप लोगों को नहीं जाना है अंदर, ठीक है, जस्ट बेसिक आइडिया दे रही हूँ, उतना याद रखना. Today we'll be discussing these two words. First is finite and infinite and these two words. ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी मैं, okay? But remember this chart. Okay, let's start with finite verbs. What are finite verbs? पहले examples देखते हैं फिर definition देखेंगे. He goes to school daily. The shop opens sharply at 9 AM. He wakes up early in the morning. अभी ये जो भी verbs है, ये पिंक कलर में ये verbs है, ठीक है, ये जो भी वर्ब्स है इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मीनिंग ही नहीं आती है. सो दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है किसी भी सेंटेंस को. फाइनाइट वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लिमिटर वर्ब्स और द एक्चुअल वर्ब्स. एक्चुअल जिसके बिना काम नहीं होगा वही असली वाला वर्ब है, विच इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द सेंटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंस फॉर्मेशन. इसके आधार पर ही हम लोग पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस बैठाना है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है. दे हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और अ नाउन ऑफ अ सेंटेंस एंड आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली टू द नाउन. मीन्स इसके ऊपर पूरा सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करता है. मतलब हियर इट्स गिवन ही गोज टू स्कूल डेली, ही इज द सब्जेक्ट हियर. सो दिस वर्ब इज टेलिंग अस दैट दिस पर्सन गोज टू स्कूल डेली. इसके बिना हम लोग को पता नहीं चलता कि ये क्या करता है. सो दिस इज़ द एक्चुअल वर्ब. अंडरस्टूड? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. हैव अ लुक एट दिस. इतना डेफिनेशन में मत जाओ, एग्जाम्पल सीखना, इट विल बी एनफ. ठीक है, done? Any questions? Next we have the non-finite verb. दोनों में एक डिफरेंस दिखा देती हूँ. अच्छा, पढ़ लेते हैं. The non-finite verb does not act as a verb in a sentence but is a noun, adjective and adverb. यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो भी वर्ड्स है ये काम कर रहे हैं.
an action is taking place and we are using the verbs here. But in non-finite verbs, sailing is my favorite sport. यहाँ पे कोई कुछ काम कर रहा है या सिर्फ बता रहा है कि ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट है. The dancing floor is shining. कोई भी डांस कर रहा है यहाँ पे. No one is dancing here, right? Chewing tobacco is bad for health. No one is chewing, but they are just addressing. So non-finite verbs जो भी है वो either noun हो सकते हैं या adjective हो सकते हैं और adverbs हो सकते हैं. Noun का मतलब हम लोग को पता है, name. जैसे यहाँ पे है sailing is my favorite sport. So sailing is a noun. What are adjectives if you ask me? Simple words में आप किसी को compliment कर रहे हो, that you are looking good today. That good is a adjective. Or you are looking bad today is an adjective. एडवर्ब का एक सिंपल रूल है, तीन या चार क्वेश्चंस आपको पूछना है. हु, व्हेन, वेयर, व्हाट. अगर ये सब क्वेश्चंस पूछने का आपको आंसर मिल जाए उसी को एडवर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, च्यूइंग टोबैको इज़ बैड फॉर हेल्थ. इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज़ बैड फॉर हेल्थ, आई कैन आंसर इज च्यूइंग टोबैको, राइट. सो दिस इज़ एन एडवर्ब. इतना डेप्थ में नहीं जाना है. जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वो लोग किसी काम के बारे में ही बोल रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं, देयर इज नो एक्शन टेकिंग प्लेस. अंडरस्टूड. बस ये बेसिक दो डिफरेंसेस याद रखना. आई गेव हियर इन दिस चार्ट प्रॉपरली. देखो, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट में दे एक्ट एज अ वर्ब. एग्जांपल है दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट. दिस वन डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब. जैसे सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है बट बता रहा है कि एक्शन के बारे में. दिस वन एक्ट्स एज ए मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज या सेंटेंस. आई लिव इन जर्मनी, ये मेन वर्ब है. अदरवाइज विदाउट दिस आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. जर्मनी में रह ही रहा है या जा ही रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, राइट. एक्ट्स एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. The sleeping cat is brown. Okay. Finite verbs indicates person, number and tense. She was waiting in the room before he came in. Was waiting, past tense, past continuous tense. I will come to tense later. ये tense बता रहा है. Before he came, वो जब आया रूम उसके पहले वो she was waiting for him. Okay. यहाँ पे this one does not indicate. यहाँ पे क्या है, she tiptoed round the house so as to not wake anyone. मतलब चुपके से जाना, पूरे घर में घूम रही थी वो. As not to wake anyone. मतलब here no one is doing anything but we are still indicating an action. Understood? Used in present tense and past tense. You promised me the last ticket. ये वाले पार्ट में बाद में आएंगे. Infinitive gerunds ये बाद में आएंगे. Appear in dependent and independent clauses. Said and enjoyed. मतलब ये लिख लो हाँ नोट्स में. एक साइड पे लिखो डिपेंडेंट, एक साइड पे लिखो इंडिपेंडेंट क्लॉज और यही सेंटेंस लिखो. मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, इतना डेप्थ की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट टीचिंग ऑल वन थिंग. राइट, इन वन साइड डिपेंडेंट क्लॉज, अनदर साइड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द एग्जाम्पल. रोड यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है. सपोज इफ़ आई से जीन सेड ओनली दिस पार्ट, कोई मीनिंग निकल रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, आगे कुछ बोलना है या समथिंग एल्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एन डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. बाकी पार्ट को अगर मैं देखूँ,
ही एन्जॉयड पेंटिंग, ये अपने आप में एक फुल सेंटेंस है, मीनिंग निकल के आ रहा है, सो दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब किसी और के बिना भी वो चल सकता है। आप लोग को इतना ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों डिस्टिंक्शन लिख के रखो। डिपेंडेंट क्लॉज खुद ब खुद मीनिंग नहीं निकाल सकता है, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद ब खुद ही एक मीनिंग हो सकता है, एंड कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली और विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, फाइनाइट वर्ब्स प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में होता है, एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी फाइनाइट वर्ब्स लगते हैं। ठीक है, इसमें मैं आऊँगी, ये वाला एक अब देख लो एक बार, हैव अ लुक एट इट एंड आस्क मी इफ एनी डाउट्स। सी दीज पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। हाँ, डन, अंडरस्टूड। अच्छा, here we saw finite and infinite verb, non-finite verb, right? We also saw अच्छा ये दो ही देखा है। Now we'll start with principal verb, जो कि finite verb में आता है। ओके, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? हाँ, हेड, राइट? तो हेड मीन्स समवन हु इज़ मेन। तो अगर मैं इस मीनिंग में बोलूँ प्रिंसिपल वर्ब, उसका मतलब क्या है? मेन वर्ब। ओके, नाउ विल सी हाउ मेन वर्ब, क्योंकि आप लोग पूछ सकते हो कि मैं अपने फाइनाइट वर्ब को भी मेन वर्ब बोला है, राइट? बट प्रिंसिपल वर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब। ओके, हाउ इट इज? Principal verb, the main verb in a sentence is called the lexical verb or the principal verb. इसके दो पार्ट्स है, दो सेम नेम्स है। हाँ, एक ही वर्ड के दो नेम्स है, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। दिस टर्म रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस, मतलब जो इम्पॉर्टेंट वर्ब होता है सेंटेंस में उसी को प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब। आई विल कम टू द सेंटेंस। The one that typically shows the action or state of being of the subject. Let's come to the sentence. यहाँ पे आप देख सकते हो मैरिलिन ate pie, ठीक है? मैरिलिन इज द सब्जेक्ट। वर्ब कौन सा है यहाँ पे? ate। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? इस वर्ड के बिना क्या इसका कोई मीनिंग है? It's acting as a main verb. Okay, so the first one is done, that is the term refers to the important verb in the sentence. Next one is showing the one that typically shows the action or state of being the subject, मतलब subject ये है, ये जो main verb है ये हम लोगों को बोल रहा है कि ये subject क्या काम कर रहा है, ठीक है? means Marilyn is eating a pie or Marilyn ate a pie. So here it's written ate is the main verb in the sentence. Okay, main verbs can stand alone, मतलब ये you can just write the word ate, you don't need is, am, are, anything with it, but they can also be used with a helping verb which is called an auxiliary verb. main verbs fall into, ये बाद में आते हैं। मेन वर्ब्स हम दो टाइप के यूज़ कर सकते हैं, आपको इतना डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मेन वर्ब, जो मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है और जो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो दिखा रहा है। अभी मेन वर्ब को हम दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, एक वो अलोन, वी आर नॉट यूजिंग एम, इज, आर, वी आर नॉट यूजिंग इट, अनदर इज वी आर यूजिंग। एग्जाम्पल, और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, और एक जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो हो गया
She has been dancing for 2 hours. Dancing is a verb. We know